A very good morning to all of you. This is Abhilashan Hata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter first of your second book, and the name of your book is Politics in India Since Independence. So, in our last class, we started this chapter. I gave you the introduction of this chapter. So basically, after independence, what were the challenges we had to face for building our nation, for the development of our nation. ठीक है, उसमें से two of the most important challenges were nation building and territorial integrity. These were the two most important, or you can say uh, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग था, ठीक है, हमारे लीडर्स के लिए. दीज वर द टू मेन challenges. So many challenges, obviously, so many challenges were also there, but our leaders prioritized these challenges of nation building and territorial integrity, ठीक है, above. Why? Because it is important uh, for our India, because India is a very diverse country. At that time, India was a very diverse country. Okay? And so many people were thinking like, if we are like we live in a India is a diverse country, so many cultures, so many religions, so many territorial differences are there. So it would India would not survive in this diversity. So it was very much important for our leaders to unite our nation. Okay, and this was one of the most important challenge uh, India had to face. Okay, so I gave you the introduction how our first Prime Minister Jawaharlal Nehru uh, addressed our nation with the speech tryst with the famous speech tryst with destiny. Go through that speech. Okay, you already read that speech in your ninth standard. Go through that speech once again, where he addressed independent India for the very first time. ठीक है? Uh, India got independence, but with independence, India also partition. ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों का पाकिस्तान और इंडिया दोनों का क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था. तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा था इंडियन सिटीजन्स के लिए, हमारे पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही नेशन के लिए. एंड आफ्टर दैट पार्टीशन इंडिया को हमारे लीडर्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को क्या करना था, इंडिया को रिबिल्ड करना था विद दीज चैलेंजेस. ये चैलेंज भी बहुत बड़ा चैलेंज था, because our leaders had to rehabilitate the citizens also. Okay, so what are the three main challenges? So first of all, the three main challenges were shape the nation with great diversity, shaping the nation with great diversity. So, as you know, the three broad challenges independent India faced, and one of them was the shape the nation with great diversity. Second one, to establish democracy. Okay, uh, two common goals. I already told you in our earlier class कि जो कॉमन बहुत सारे एस्पिरेशंस थे इंडियन सिटीजन्स को विद इंडिपेंडेंस. ठीक है, बट उसमें से जो कॉमन गोल्स थे, ठीक है, कॉमन जो एस्पिरेशन थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो थी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना. वी विल रन आवर कंट्री विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड पुअर्स
सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के साथ क्या करना, सोशली पुअर्स एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं उनके अच्छे के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट will run for the good for the poor and the socially disadvantaged group. Okay, so to establish democracy, this was also one of the main challenge India had to face. And the last one is to ensure development and well-being of the entire society and not only of some sections. Obviously ensure development for all the classes, for all the minority sections, for all the religious groups, or all the groups. Okay, to ensure development and well-being of entire society, not only for some sections of the society or some members of the society, but for everybody, for all the regions, for all the princely states, everybody. Okay, these were the three main challenges. So now we will uh, discuss each and every challenge elaborately here. So the first challenge was shaping the nation with great diversity. Okay, like in many speech you have heard about, like you have heard that India is a very diverse country. Okay, and there is a unity in our diversity. But ये जो unity है, उसका जो roots है वो develop कैसे हुआ था? This was a very important thing to discuss कि वो root develop क्या क्या उसमें challenges आए थे उस roots को develop करने में. Even आज के time पे क्या होता है, even एक family भी होती है, बहुत सारे obviously uh, you are the class of 35 students, and everybody have their own opinions and own point of views, right? I have different opinion, you have different opinion, different point of view, obviously. तो सोचो, एक different culture से belong करते हैं जो लोग, different religion से belong करते हैं, different territory से belong करते हैं, उनके point of views और उनके जो ओपिनियंस है कितने डिफरेंट होंगे, और उन सबको यूनाइट करके रखना कितना बड़ा चैलेंज है लीडर्स के सामने. सो कॉन्टिनेंटल, फर्स्ट वन इज द कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी. India is the seventh largest country in the world in terms of land. Okay, but in that land, हर एक रीजन में, इन एवरी 5 किलोमीटर्स, इन एवरी 10 किलोमीटर्स क्या है, आपको डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स मिल जाएंगे. ठीक है, आपको क्लास में इतनी डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप्स मिल जाएंगे, हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी. तो कॉन्टिनेंटल साइज और डाइवर्सिटी ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वी हैव आवर लीडर्स हैड टू डिवाइड, our leaders had to segregate the states according to their region, according to their religion, according to their similarity, according to their language. ठीक है, इन सब को देखते हुए इंडिया को क्या करना पड़ा था, हमारे लीडर्स को इंडियन स्टेट्स को सेग्रीगेट करना पड़ा था, जो आज के टाइम पे हम 28 स्टेट्स देख रहे हैं. ठीक है, तो पहले 28 भी नहीं थे. ठीक है, तो क्या हुआ था, धीरे धीरे उनका क्या हुआ था, सेग्रीगेशन भी हुआ था. कुछ स्टेट्स तो बहुत जल्दी फॉर्म हो चुके थे. ठीक है, बट कुछ स्टेट्स में जैसे बहुत प्रॉब्लम थी, लाइक आप आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का ले लीजिए. पहले आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बोथ वर द सेम रीजन, लाइक एक ही स्टेट था. बट नाउ दोनों ही क्या है, दो डिफरेंट स्टेट्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल साइज क्या होगा, उनकी डाइवर्सिटी को हमें कैसे मेंटेन करना है, और उससे उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए हमें उन्हें यूनाइट भी करना है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था. आफ्टर दैट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेजेस. ठीक है, हिंदू जस्ट some people are speaking Punjabi, some are speaking Rajasthani, some are speaking Marathi, some are speaking like Urdu, English, sorry, not Christian.
some were speaking Bengali. तो बहुत like even so many languages were there. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लीडर्स ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, उन्होंने 21 लैंग्वेजेस को, 21 प्लस इंग्लिश, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस को उन्होंने क्या कर रखा है कि एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, उन एक्सेप्ट कर रखा है, जस्ट बिकॉज कि क्या है, हम अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करें विद यूनिटी। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखना और उसे अकॉर्डिंगली क्या करना, अकॉर्डिंगली उन्हें इम्पोर्टेंस देना। कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था सेक्युलरिज्म। सपोज इंडिया में अगर किसी एक रिलीजन को, फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म को क्या कर दिया जाता कि ग्रेट इंपॉर्टेंस दी जाती, नेशन का हिंदुइज्म को ही क्या कर दिया जाता कि हमारे नेशन का जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म ही होगा, ठीक है। तो कितना, सोचो क्या सिचुएशन होती है अगर उस टाइम पे अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस दे दी जाती, तो ऑब्वियसली हम सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे कि हमने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। आई थिंक इन आवर क्लास, इन योर क्लास 10 यू ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस बुक, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, हमने श्रीलंका में देखा था मेजोरिटेरियनिज्म, और उससे क्या हो चुका था, उससे सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हो चुकी थी, ठीक है। इवन बहुत ही कम परसेंटेज पॉपुलेशन थी, ठीक है। इवन वहां पे तो ओनली 3 या 4 जैसे लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थे, ओनली 3 और 4, सिन्हाला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, ठीक है, क्रिश्चियन स्पीकिंग, इवन 2 ही थी। हमारे इंडिया में तो इतनी सारी है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने बोला एवरी रिलीजन इज इम्पोर्टेंट टू अस and every religion, like we will not give any particular importance to any one religion, ठीक है। तो आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एनी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं वहां पे कोई जो पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको, या फिर पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ठीक है, उस दिन वेकेशन होता है, ठीक है। तो वाई कि हम क्या करें, हम उस चीज को मेंटेन करके रखें कि नो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है। हम किसी एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन को हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अब देखो इंडिया में क्या है, इतने सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो वेकेशन होती है, ठीक है, वो मोस्टली कब होती है, जब गणेश चतुर्थी का टाइम होता है, उस टाइम पे होती है। अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो वहां पे लाइक हमें दिवाली के टाइम पे लाइक उस टाइम पे दिवाली, यूपी राजस्थान का साइड जो है दिवाली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उस टाइम पे मोस्टली हम वेकेशन देखने को मिलता है। प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ नॉर्मली मैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जब दशहरा होता है उस टाइम पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो जस्ट लाइक दैट ईच एंड एवरी स्टेट हैज देयर ओन कल्चर्स, ओन रिलीजियस like have their own religion, तो दे वर्क अकॉर्डिंगली। तो उस चीज को मेंटेन करना बहुत बड़ा जो था हमारे नेशन को बिल्ड करना, ठीक है, हमारे इस चीज को मेंटेन करना हमारे लीडर्स के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सो एट दैट टाइम इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट अ कंट्री फुल ऑफ such kinds of diversity could not remain together for long. Okay, so many questions arised, like how we will survive, ठीक है, how would India survive as a unified country, because उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिले थे जहाँ पे पार्टीशन हो रहा था, राइट। सो वुड इंडिया survive as a unified country, would it do so by emphasizing national unity at the cost of every objective? Would it mean rejecting all regional and sub-national identities? So many questions arised at that time, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज हुआ था
And the main challenge India has to face is this shaping the nation with great diversity. And in this chapter, basically, we will talk about this nation building only. This first challenge, okay, how what were the roles of different leaders, like what were the role of Sardar Vallabhbhai Patel, and how Mahatma Gandhi sacrificed his life, and we will talk about some provisions also कि क्या partition हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, we will talk about it. Okay, so the partition of the country appeared to prove everyone's worst fears. ठीक है, बहुत worst fears थे, obviously वो fears reality में नहीं बदले. That's हमारे नेशन बिल्डर्स ने बहुत इतने अच्छे तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि और उस टाइम पे गवर्नमेंट अप्रोचेस लेकर आए कि जिससे कि वी आर यूनिफाइड एज अ कंट्री. ओके, with these such diversity also, we are a united country, one of the most united country in the world. Okay, now the second most important challenge was establishing democracy. ठीक है, our government has to had to establish democracy. उनके दिमाग में था, ठीक है, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही क्या करनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चलानी है, डेमोक्रेसी लेके आना है. ठीक है, बट वो सारा प्रोसीजर समझाना, सब कुछ करना, वो कैसे होगा. आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. हर एक एक्ट को, हर एक लॉ को क्या है, दे डेलिबरेटली डिबेटेड, राइट, दे डेलिब्रेटेड, दे डिबेटेड इट. ठीक है, और बहुत लंबा टाइम लेके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अप्रोक्सीमेटली 3 years उन्होंने लिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इवन दे ग्रांटेड अस फंडामेंटल राइट्स. दे borrowed those good things from other countries, they borrowed good things from the other countries and they mold it according to our needs. ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ये जो बिल ऑफ राइट्स है, they our constitution makers took it from the USA, but they mold it, our constitution, constituent assembly members mold it according to our needs, according to the needs of our country. ठीक है, तो हमें they granted fundamental rights, they extended the right to vote to every citizen, and it is very important thing for that time, not for today. ठीक है, आज के टाइम पे आप देखोगे तो आपको इतना नहीं लगेगा कि मैम ठीक है, राइट टू वोट वुमेन को मिल गया, इट्स ओके, राइट टू वोट ट्रांसजेंडर्स को मिल गया है, इट्स ओके. ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं था. पहले इंडिया को बहुत कुछ फेस करने को बहुत कुछ फेस करना था. ठीक है, उस टाइम पे इंडिया को हर एक वुमेन को, हर एक वुमेन को, ट्रांसजेंडर्स को, हर एक कम्युनिटी के पर्सन को, सबको क्या करना था, राइट टू वोट देना था. बट बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जहाँ पे ये स्ट्रगल काफी लंबे अरसे तक चल रहा था. ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें हर एक सिटीजन को राइट टू वोट दिया और उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं थी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत क्लियर थे इस चीज को लेके. If we have to establish democracy in this diverse nation, we have to give this right to vote to every citizen, to each and every citizen of our country. Okay, adopted representative democracy based on parliamentary form. ठीक है, अब parliamentary form of government, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स से. ठीक है, बट और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी अडॉप्ट कर लिया इन्होंने. ठीक है, ये चीज भी अडॉप्ट कर ली, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू डेमोक्रेसी है तो लोग क्या करें, हर एक मैटर पे वो क्या करें, डिस्कस करें. ठीक है, ओके,
तो अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी अडॉप्ट कर लिया कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इतनी डाइवर्स नेशन में प्लस इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी इट इज नॉट पॉसिबल कि हम क्या करें, हर एक सिटीजन को हर एक मैटर में वो डिस्कस कर सकता है, नो नॉट पॉसिबल एट ऑल. So these features ensure that the political competition would टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. बहुत अच्छे फीचर्स अडॉप्ट किए, इंश्योर भी कर रहा था कि पॉलिटिकल कंपटीशन भी जो है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलेगा. बट द मेन चैलेंज व्हाट वाज द मेन चैलेंज फॉर आवर कंट्री? खाली कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना देना ही जरूरी नहीं था, साथ या सफिशिएंट नहीं था. ठीक है, एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए इट इज not just sufficient to make a democratic constitution, but the main challenge was to develop democratic practices. ठीक है, रियलिटी में ये प्रैक्टिसेस को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेन चैलेंज था. ठीक है, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी में ये सारे राइट्स ले आए, एक्ट्स ले आए, बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली, सब कुछ कर लिया. बट जो मेन चैलेंज था वो क्या था, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए to develop democratic practices according to the constitution, की free and fair elections हो, everything, और या मतलब कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो उन राइट्स को हम क्या है रेस्पेक्ट करें, लोगों के राइट्स को. ऐसे नहीं है कि बस दे दिया और अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है. नो. तो ये मेन चैलेंज था, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी. ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में इस टॉपिक के, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का इस टॉपिक के बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका जो मेन चैलेंज था वो क्या था? नेक्स्ट चैलेंज वाज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. ठीक है, टू इंश्योर द डेवलपमेंट and well-being of the entire society, and for this our constitution laid down the principle of equality. Our very first fundamental right is right to equality. ठीक है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, नोबडी इज सुपीरियर. ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कॉमन सिटीजन हो, एवरीबडी इज सुपीरियर. लाइक एवरीबडी इज इक्वल, नोबडी इज सुपीरियर. ठीक है, कोई भी इक्वल वोट्स होंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें, वी हैव दिस राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज. स्पेशल, अब आप देखते हो कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स आर देयर. ठीक है, तो एक स्पेशल राइट स्पेशली किसके लिए बनाया गया? माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए बनाया गया ना. तो जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, आज के टाइम पे हमें इतना देखने को नहीं मिलता है, बट उस टाइम पे अपर कास्ट, लोअर कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. इवन आज के डेट में भी फेस करनी पड़ रही है, बट इतना नहीं है. बट at that time they had to face so many challenges. So this was also a very difficult challenge, most difficult challenge for our leaders to protect them, कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को प्रोटेक्ट कैसे करें. तो उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देना, रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन देना, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज की. दे सेट आउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. ठीक है, अब कुछ चीजें जो उस टाइम पे एज अ लॉ स्टैब्लिश करना मुश्किल था, ठीक है, डिफिकल्ट था, उसको उन्होंने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एज अ गाइडेंस हमें प्रोवाइड किया. ठीक है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा. इंडिया इंडिपेंडेंट कब हो गया था? 1947 में हो गया था. बट जो पंचायती राज सिस्टम जो आया था, लोकल गवर्नमेंट्स का जो आया था, वो 92 में आया था.
ठीक है। तो वो वन ऑफ द गाइडेंस थी डीपीएसपी की, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक गाइडेंस था कि अभी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एस्टैब्लिश दोज थिंग्स राइट नाउ, बट इन फ्यूचर when we achieve something, like after that we can establish those things, right? So for the welfare goals that democratic politics must achieve, ठीक है, after some goals, um, after some goals, when we achieve those goals, after that we can uh, establish those things, ठीक है। तो डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ये चीजें उन्होंने क्या की थी, मेंशन की थी। So now the real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty, ठीक है। मेन चैलेंज जो था, ये सारी चीजें डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दी गई थी, बट जो रियल चैलेंज था वो क्या था, वो था कि ऐसी इफेक्टिव पॉलिसीज लेकर आए जिससे कि इकोनॉमिकली हमारी कंट्री क्या हो, डेवलप करे, एंड साथ ही साथ पोवर्टी भी क्या हो, इरेडिकेट हो, ठीक है। हमें पुअर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है जिससे कि वो पुअर ना रहे, पोवर्टी उस टाइम जिससे कि इरेडिकेट हो सके, खत्म हो सके, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आई, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। तो एक रियल चैलेंज था कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल we have to they had to like make the policies, ठीक है, जिससे कि एक हमारे सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पोवर्टी इरेडिकेट हो सके, right? So these were the three main challenges faced, like three main broad challenges, I would say three main broad challenges faced by our leaders, ठीक है, और faced by like independent India, just after independent India और Indian citizens। मैं अगर national leaders बोल रही हूँ तो that was not a right term, क्योंकि उस टाइम इंडियन सिटीजन्स ने भी बहुत कुछ सहन किया था, इवन सबसे ज्यादा उन्हीं को ही चैलेंज फेस करने को मिला था, बट जो मोल्ड करना था, ठीक है, नेशन को बिल्ड करना था, उसमें हमारे लीडर्स का बहुत ज्यादा लाइक योगदान है। They contributed a lot, so that's why I'm using this term national leaders again and again, ठीक है। Obviously citizens का सबसे important role है and they played a very huge role, और अगर वो उन चीजों को नहीं मानते तो शायद ये सब जो आज के टाइम पे इंडिया है, वो यूनाइटेड इंडिया है, वो शायद पॉसिबल भी नहीं था, right? So these were the three broad challenges which our leaders had to face to develop our to establish our to to develop our India, to make our India united, ठीक है। ये तीन मेन challenges थे। now uh, now class, just look at these stamps। ये जो स्टैम्प्स हैं 1950 फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को क्या हुए थे, इशूड हुए थे। आपके बुक में ये थ्री स्टैम्प्स ही गिवन है, सॉरी आई एम यूजिंग मैप अगेन एंड अगेन, सॉरी फॉर दैट। ये तीन स्टैम्प्स जो हैं आपके बुक में मेंशन्ड है, फोर्थ वन मेंशन नहीं है बट आई मेंशन्ड हियर, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चार स्टैम्प्स जो हैं इशू हुए थे 1950 को, 20 से हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे को, ठीक है। नाउ व्हाट डू द इमेजेस ऑन दीज स्टैम्प्स टेल यू अबाउट द चैलेंजेस टू द न्यू रिपब्लिक, ठीक है। अब हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। दीज इमेजेस ऑन दीज स्टैम्प्स आर टेलिंग अस समथिंग, ठीक है, कि क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा है या फिर क्या हम अचीव करना चाहते हैं। नाउ जस्ट लुक एट दिस स्टैम्प, ठीक है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, स्पिनिंग व्हील, चरखा बना हुआ है, एंड सिटीजन्स और आप चिल्ड्रन बोल लो, क्या कर रहे हैं, वो चरखे को देख रहे हैं, एंड फ्लैग क्या हो रहा है,
फ्लैग भी फ्लाई हो रहा है, ठीक है, एक फ्लैग फ्लाई हो रहा है। तो ये जो चरखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है भारत 12 आना, ठीक है, और इवन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, पोस्टेज 12 आनास, इनॉग्रेशन जनवरी 26 1950, ये तो आप सब जगह देखोगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया चारों स्टैम्प में देखोगे। क्लास उस टाइम पे, आज के टाइम पे जैसे हमारे पास इंटरनेट है या फिर मोबाइल फोन्स हैं या टेलीफोन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो पोस्ट ऑफिस सिस्टम जो है बहुत लाइक इम्पोर्टेंट था, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बहुत सारे, इवन आज के टाइम पे भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट वर्क्स में स्टैम्प्स की जरूरत होती है, ठीक है, बट आपने इतना नहीं देखा होगा स्टैम्प को अभी तक। बट पहले पोस्ट ऑफिस में हर एक पोस्ट ऑफिस का बहुत यूज होता था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का बहुत की सर्विसेज लोग बहुत ज्यादा लिया करते थे, राइट, तो स्टैम्प्स की जरूरत पड़ती थी। तो बैक टू द टॉपिक की, अब ये जो है स्टैम्प, इसमें क्या बताने की कोशिश की है, ये महात्मा गांधी का जो ये आइडिया था स्पिनिंग व्हील था, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करनी है, इकोनॉमिकली हमें सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है। बाय दिस स्पिनिंग व्हील, महात्मा गांधी ने यही कहा था ना कि हम खुद के कपड़े बनाएंगे, ठीक है, वी विल स्पिन आवर ओन क्लोथ, ठीक है, खादी बनाएंगे। तो इस स्टैम्प से हमें यही समझ में आता है कि इकोनॉमिकली हमें क्या होना है, सेल्फ रिलायंट होना है। नेक्स्ट स्टैम्प 4 आना, मतलब उस टाइम पे आना वगैरह चलते थे, इट इज टॉकिंग अबाउट मनी ओनली, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे क्या है, ग्रेन्स बने हुए हैं, ठीक है, क्रॉप बना हुआ है, व्हीट क्रॉप बना हुआ है, एंड साथ में प्लग बना हुआ है, ठीक है, हल बना हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि ऑब्वियसली इंडिया की 70% पॉपुलेशन उस टाइम पे, मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, आई वुड से इन्वॉल्व थी। तो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आज भी हमारे देश में काफी है, आज के टाइम पे भी और उस टाइम पे भी काफी थी। तो एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी को यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस दी गई है और बोला गया है कि एग्रीकल्चरली हमें क्या है, एग्रीकल्चरली भी हमें अपने आप को डेवलप करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपब्लिक डे परेड हो रही है, ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक डे था सेलिब्रेशन, फर्स्ट रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था, चिल्ड्रन उसे देख रहे हैं। तो ये शो किया गया है कि सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, दैट्स इट। नाउ ये जो फोर्थ स्टैम्प है जो आपके बुक में मेंशन नहीं है, इसमें क्या शो किया गया है, कुछ बुक्स दे रखी है, ठीक है, इंक पॉट है एंड ये लीफ है, ठीक है, आपने अपनी कुछ पुरानी मूवीज में या फिर राजा महाराजा की अगर कोई हिस्टोरिकल मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा, दे यूज्ड लीव्स एंड एवरीथिंग फॉर राइटिंग लेटर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो एनीथिंग लाइक दैट। सो ये जो है लीफ और इंक पॉट, ठीक है, मतलब पेन को दर्शाया गया है, प्लस यहाँ पे बुक्स और आप बोल सकते हो नोट्स मेंशन किए गए हैं। तो ये स्टैम्प क्या शो करना चाह रहा है, टू मेक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, इफ यू वर आस्क्ड टू डिजाइन दीज स्टैम्प्स इन 1950, व्हिच इमेजेस वुड यू हैव चूजन? नाउ आप क्या चूज करते, अगर आपको बोला जाता तो आप क्या चूज करते? यस, जल्दी से बता दो मुझे, देवांशी, व्हाट विल यू चूज, व्हाट वुड यू चूज? यस, हेलो देवांशी, हर्षिता। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो वी विल डिस्कस इट, प्लीज अच्छे से इस चीज को देखना, और मैं कल पूछूंगी आपसे कि व्हाट वुड यू चूज अगर आप उस टाइम पे होते और आपको डिजाइन करने के लिए बोला जाता तो, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम को विद दैट थीम
रखना याद कि क्या क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि सेल्फ रिलायंट बना, इकोनॉमिकली वी हैव टू मेक आवर सेल्फ रिलायंट, वी हैव टू प्रॉस्पर आवर एग्रीकल्चर, ठीक है। सेलिब्रेशंस, वी हैव टू सेलिब्रेट आवर सेल्फ, ठीक है। एज वी गॉट इंडिपेंडेंट, वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस स्टैम्प इज telling us about to make our education system strong. We have to make us literate, ठीक है। ये है, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाता तो आई विल रिकमेंड कि हमें एक तो मैं या तो ये वाला स्टैम्प लेती टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और आई टू मेक आवर सेल्फ रिलायंट, ठीक है। सेल्फ रिलायंट अपनी स्किल्स पे, स्किल्स के बारे में बोला